Girls, do not walk alone. Don't dress provocatively. Get back home by 6. Don't drink. Don't give wrong signals. Be careful because it's your responsibility. How about guys don't rape? We have always been teaching girls, blaming them, and then the man never has to take the responsibility. I was binge watching Netflix the other day, and this dialogue resonated with me on another level. First word that came to my mind was preach. I can't still forget it. It's not very often that you hear such sane voices from a random TV show, but it was helpful, simple yet impactful. तो आज इसके बारे में ही बात करेंगे और समझेंगे इंडिया में रेप्स के नंबर क्यों बढ़ते जा रहे हैं। 2012 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इतने प्रोटेस्ट, इतने कैंडल मार्चेस और इतने कंसर्न पॉलिटिकल कमेंट्स के बाद भी रिजल्ट क्या निकला? जीरो, शून्य, कोई चीज नहीं आया। रेप्स होते गए, रिपोर्ट्स बनती गई, मीडिया बोलती गई, विक्टिम्स रोते रहे, यहां तक कि रेप पर पॉलिटिक्स भी चलती रही। बीजेपी ने कांग्रेस को और कांग्रेस ने बीजेपी को ब्लेम किया। जब फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कोई बड़ी हेडलाइन फिर बना दी। इन 2018 an 8-year-old girl in Jammu and Kashmir was brutally raped and murdered. The girl was kidnapped, confined using sedatives, and repeatedly gang raped in a temple. She was strangled and then hit with a heavy stone. That was devastating. Until it happened again. Hathras rape case. A 19-year-old girl was gang raped and was brutally attacked after fighting for her life for days. She died. फिर क्या हुआ? India was on roads again. People were crying again. Families were devastated again. And politicians were fighting again. And nothing was done. Guess what? Again. According to the latest government figure released on September 29, 2020, India recorded an average of 87 rape cases daily in 2019. And overall 4,05,869 cases of crime against women during the year. और इकोनॉमी का तो पता नहीं, पर हाँ इस फील्ड में जरूर हमने तरक्की की है। 2018 से 7% इंक्रीमेंट हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लेटेस्ट रिपोर्ट कॉल्ड द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया हैज slipped 28 places since last year to rank 148th among 156 countries. और इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिस बांग्लादेश को हम छोटा समझते हैं या पीछे समझते हैं, उसकी रैंक है 65, which is far better than India. तो ये रिपोर्ट ये दिखाती है that women in India are far behind men when it comes to economic participation, educational attainment, or health and survival, or political empowerment. Not because they are born like this, but because they have been exploited, not given opportunities since the beginning of the time. India thus has been dubbed the most dangerous country for women by many human rights activists. But why is India so prone to gender-based crimes? सबसे important reason that I can't stress enough upon is social conditioning. ज़्यादातर रिसर्च का ये मानना है कि इंडिया में रेप एक सोशल प्रॉब्लम है, ना कि एक लीगल इशू। वी हैव ए पैट्रियार्कल सोसाइटी इन इंडिया विच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू मैन। यहां मर्द ही सब कुछ है। वुमेन आर यूजुअली कंसिडर्ड एज ए सेकंड क्लास सिटीजन। In an Indian family, girls' wishes and her opinions are not considered as important as that boys. The female child learns to be subservient from the beginning. ये हर बार इंटेंशनल नहीं होता। हमारे पेरेंट्स की कंडीशनिंग भी ऐसी ही है कि वो सबकॉन्शियसली वही डिसीजन लेते हैं जो कि उन पर थोपे गए हैं। अब उन्हें ब्लेम करना है या नहीं करना वो हम पर है, पर हाँ समझने और समझाने की कोशिश की जा सकती है। ये एक बहुत लंबी डिबेट है, पर इन कुछ शब्दों में मैं सम अप करना चाहूँगा। We just have to understand and remember that as long as a system like patriarchy exists and we continue upholding it, there is no way that we can escape these conditions that we have created. Let's start listening to women, what they want, how they want, simply rights, and most importantly, respecting them and their choices. देखिए, समझना जरूरी नहीं है कि rape is a part of larger problem,
But eventually, it comes down ultimately to the attitude people have towards girls or women in general. ये attitude बनना start होता है maybe by curbing freedoms, but then the larger ramifications are evident in form of gruesome violence like rapes and sexual assaults. What is unfortunate is violence against women usually takes place in their immediate surroundings. National Crime Records Bureau के डाटा के अकॉर्डिंग 2017 में 93% रेप केसेस में अक्यूज वर नॉन टू विक्टिम्स. ये फैमिली मेंबर्स थे, फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे, एम्प्लॉयर्स थे, इवन ऑनलाइन फ्रेंड्स. तो औरतें कहीं भी सेफ नहीं है. तो बाहर मत निकलो, दोस्त मत बनाओ, घर 6 बजे से पहले आ जाओ. These all arguments are stupid. Another extremely important reason is majority of cases regarding the sexual assault or rape crimes go unreported. मुझे नहीं पता कि ये फैक्ट्स और फिगर्स जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सही है गलत. ट्रस्ट मी, गवर्नमेंट के साइट्स पे यही अवेलेबल है, पर रियल है या नहीं ये नहीं पता. क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स these are a small percentage of reports that we encounter as majority of them go unreported. For example, the National Family Health Survey revealed that every third married woman had experienced physical or sexual violence, but only 1.5% had sought help from the police. That proves the point. In many cases, it has been noted that culprit is the familiar individual. This prevents the victim from raising any voice against them. The reluctant and less sensitive attitude of the police officials while registering the cases makes the victim feel more victimized, leading to underreporting of the cases. Now let's talk about the culture of violence. Most of the men believe some overtly, some covertly, but they do believe that the girls in western clothes are immoral and that they can be harassed because they are asking for it. जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है. हर किसी का मूड खराब होगा. अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है. इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है, बताओ क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों नहीं दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता. लेकिन इनसे जाकर कोई ये पूछे कि वो 8 महीने की बच्ची को देखकर ऐसा क्या लगा होगा. पर यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये समझना कि men are naturally violent तो ऐसा नहीं है, because they are not. In reality, patriarchal norms makes them insensitive. Therefore, not every man is a part of problem, but every man definitely be part of the solution. But हाँ, जितना normal हमने बना दिया है, उसकी वजह से ये सब नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं. I highly recommend everyone watching the movie Thappad, where Taapsee Pannu perfectly summed up everything when she said, Just a slap, पर नहीं मार सकता. So this violence is not normal and it needs to be stopped. For your information, America में women can legally take their tops off, and here we are stuck thinking whether women are asking for it when they are wearing a pair of jeans. पर क्वेश्चन अभी भी ये है, why do men rape? Experts का मानना है कि रेप करने वाले लोग कुछ अलग नहीं होते. इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें सबको शक की नज़र से देखना चाहिए, पर हाँ, it just simply means that there isn't one specific type who commits such kind of crimes. ये पता चला जब डॉक्टर सैमुअल स्मिथमैन, एक यूएस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने 50 मैन को अनोनिमसली इंटरव्यू किया इन 1970s में, who all had confessed to having raped someone. तो ये मैन डाइवर्स बैकग्राउंड से थे. इनका सोशल स्टेटस अलग था, एजुकेशन अलग थी, और हाँ, पर्सनालिटीज भी अलग थी. वो अपनी रिसर्च में बताते हैं कि उनको सबसे अजीब बात ये लगी दैट देयर वाज नो रिमोर्स. वो इतने अनकंसर्न साउंड कर रहे थे इसके बारे में बात करते हुए कि जैसे कि ये उनकी गलती थी ही नहीं. लेकिन डेटा को कंपाइल करते समय इट शोड दैट रेपिस्ट डू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. दोज आर लैक ऑफ एम्पैथी, नार्सिज्म एंड फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स वुमेन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉक्सिक मस्कुलिनिटी. शेरी हैम्बी, ए साइकोलॉजी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ, उसने अपनी रिसर्च में बताया कि सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले लोग ज़्यादातर उसे एक क्राइम देखते ही नहीं, वो उसे एक सेक्सुअल इंटरेस्ट की तरह देखते हैं, बल्कि रेप इज़ मोर अबाउट डोमिनेटिंग पीपल. Hamby, who is also founding editor of American Psychological Association journal Psychology of Violence, explained how toxic masculinity promotes rape culture. उन्होंने समझाया कि रेप ऑफेंडर अक्सर यंग मैन ही होते हैं. इसका कारण ये है कि इन्हें अपनी मेल डोमिनेंस दिखाने का और सोसाइटी में अपनी वर्थ प्रूव करने का यही तरीका दिखता है. Also not being sexually active is often stigmatized. DW को इंटरव्यू देते समय मिस हैम्बी ने समझाया कि कुछ लोग रेप को सेक्सुअल डिजायर से जोड़ देते हैं, ना कि क्राइम से. इसको ऐसे समझना जरूरी है कि रेप इज नॉट ए बिहेवियरल या मेंटल डिसऑर्डर, बल्कि क्रिमिनल ऑफेंस है. सो देयर इज नो सच साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट कंपेल्स पीपल टू रेप. लेकिन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रैंडी थॉर्नहिल और इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ग्रेग पामर का मानना हैम्बी से थोड़ा अलग है. They believe that the primary motive behind rape is indeed sex. They argue that rape is an adaptation, a result of Darwinian selection,
and are of opinion that it evolved to increase the reproductive success of man. वो कहते हैं कि जिन औरतों का ज़्यादा रेप होता है वो चाइल्ड बियरिंग एज में होती है. Saying this support their hypothesis that rape derives from a desire to reproduce. लेकिन उनकी बुक ए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रेप बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्सुअल कोहेशन को शार्पली क्रिटिसाइज किया गया बाय द साइंस जर्नल. जर्नल का मानना था कि पीसेस ऑफ एविडेंस cited by the authors were misleading, biased, or equally support alternative explanation. In fact, most social scientists, psychologists, and feminist activists are of the opinion that rape nearly exclusively has to do with issues of power and violence. इनका मानना है कि रेप की मोटिवेशन हमेशा से कंट्रोल करने का और डोमिनेट करने का ही रहा है. Heterism and hostility towards women can also be cited as another reason. Now let's talk about hostility towards women. आपको पता है रेपिस्ट को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है क्योंकि वो औरतों को देखते ही ऐसे एक ऑब्जेक्ट की तरह है. या तो दे कंसिडर देम एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट हु आर देयर टू फुलफिल मेन सेक्सुअल नीड्स. ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है. ये चीज़ देखी जाए. अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है. लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा. साथ ही साथ वो अपनी सुप्रीमेसी को दिमाग में रखकर ये सोचते हैं कि वुमेन को कंसेंट से ज़्यादा जरूरी उनकी सेक्सुअल नीड है. अगेन हेल्थ द पैट्रियार्की. दे टेंड टू होल्ड फॉल्स बिलीफ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज रेप मिथ्स. जैसे कि उन्हें लगता है कि अगर लड़की मना कर रही है तो वो एक्चुअली में हाँ है. सी रेदर इज जस्ट प्लेइंग अराउंड. उनके लिए नो मीन्स यस. और रांझना जैसी मूवीज में इस तरीके को खुल के सपोर्ट किया है, रोमांटिसाइज किया है. अपने उत्तर प्रदेश में ना लड़कियां 2 तरीके से पटाई जाती हैं. एक तो मेहनत से, सुबह से शाम पीछा करो, घर के बाहर, स्कूल के बाहर, बाजार में, सड़कों पे, साइकिल पे, रिक्शा में, टेम्पो में, रो दो, खाना खाना छोड़ दो, वजन घटा दो और लड़की को इतना थका दो कि वो थक के हाँ बोल दे. एंटोनिया एबे एक सोशल साइकोलॉजिस्ट जो कि वेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, उनके मुताबिक हर असोल्टर को यही लगता है कि वुमेन वर जस्ट बीइंग हार्ड टू गेट. उनका भी मन था पर वो बस मना कर रही थी. एबे ने एक रेपिस्ट को कोट करते हुए बोला कि उसका मानना था कि रेप करके उसने अपना हक लिया है और ये उस लड़की को पे बैक था क्योंकि उसने मुझे सेक्सुअली अराउज किया. उसने अपने रेप को एक्सपीरियंस को बताते हुए गिल्ट नहीं दिखाया बल्कि उसे एक पावरफुल और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बोला. पर सबसे पहला स्टेप होना चाहिए टू एडमिट दैट यस इट इज ए प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी एंड इट इज अस हु आर रिस्पॉन्सिबल. हमने देखा है कि हर बार रेपिस्ट को जानवर, राक्षस ऐसा सब बुलाकर सोसाइटी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देती है और सारा ब्लेम रेपिस्ट पर चला जाता है. हाँ, रेपिस्ट की गलती है पर वो बचपन से वैसा नहीं था. ये समझना इंपॉर्टेंट है. तो प्रॉब्लम है और हमारी भी गलती है. रेपिस्ट को रेप और कंसेंट के बीच में फर्क ही नहीं पता, ना कभी समझाया गया. फोकस रेपिस्ट से ज़्यादा हमारी सोसाइटी की प्रैक्टिसेस पर होना चाहिए. कैसे हमारा एटीट्यूड है वुमेन को लेकर, घर पर, वर्क प्लेस में कितनी फ्रीडम दी गई है. Secondly, it is important to understand that while law is the most important tool, it solely will not solve the problem. लोगों को भी अपना पार्ट इक्वली निभाना पड़ेगा. इसमें एक और डिबेट आती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? इनफैक्ट प्रॉब्लम बढ़ जाती है. जब से रेप्स बढ़े हैं तब से एक पैटर्न देखा गया है कि रेप होने के बाद विक्टिम को मारने की कोशिश की जाती है ताकि ना कोई एविडेंस रहे ना ही कोई पनिशमेंट. कैपिटल पनिशमेंट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है जो कि पब्लिक को सेटिस्फेक्शन देता है पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता. जस्टिस वर्मा कमेटी जिसको ऑर्गेनाइज किया था 2012 दिल्ली रेप केस के बाद, उसमें भी यही लिखा था कि डेथ पेनल्टी वुड बी ए रिग्रेसिव एंड कांट सॉल्व द प्रॉब्लम. देयर इज नो गोल्डन सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम क्योंकि ये इतने सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके बनता है जैसे पैट्रियार्की, मस्कुलिनिटी, सोशल इंटाइटलमेंट, डोमिनेंस, वायलेंस. तो इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढना मुश्किल है. सोसाइटी को कलेक्टिव एफर्ट देकर ही इसको खत्म किया जा सकता है. ये सिर्फ रेपिस्ट को स्टडी करके नहीं होगा. यहाँ जो लोग रेपिस्ट नहीं है उनको भी कोर्स करेक्शन की जरूरत है. वुमेन एम्पावरमेंट से बहुत बदलाव आ सकता है. एक औरत पढ़ती है तो पूरा घर एजुकेट होता है. एजुकेशन सब सोल्व नहीं करेगा पर हाँ चेंजेस आएंगे. वुमेन अपने राइट्स को जान पाएगी और उसके लिए स्टैंड ले पाएगी. जैसे कि मैंने बताया, WF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वुमेन का लेबर पार्टिसिपेशन रेट इज एन कॉन्स्टेंट डिक्लाइन. तो इस पर काम करने की ज़रूरत है. एक फिनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन को एक सेक्सुअली, फिजिकली अब्यूजिव रिलेशनशिप या मैरिज से
बाहर निकलने का ऑप्शन होना चाहिए, और तब ये पॉसिबल है जब वुमेन इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB, Crime in India 2000 report, about 70% of women in India are victims of domestic violence. Domestic violence also include marital rape. Marital rape has been impeached in more than 100 countries, but unfortunately, India is one of the only 36 countries where marital rape is still not criminalized. So at least by making women financially independent, we can provide them with the choice to walk out, thus not being dependent on any male member in her family. Practices like dowry, female feticide, male child preferences are all part of the problem. औरतों की चॉइस को कंसिडर किया ही नहीं जाता। एक बहुत अच्छी और सच्ची लाइन है जो मैंने कहीं सुनी थी, जवानों का शोषण किया जाता है उसे महान बताकर, औरतों का शोषण किया जाता है उसे देवी बताकर। Education and awareness might be proved as an asset to solve these, क्योंकि पढ़ने से पता चलेगा कि वो लड़की कल्पना चावला भी बन सकती है और कमला हैरिस भी। अब सब इक्वल है। If you want to change, women's political empowerment is also important. A man cannot know what a woman suffer through. So if we need women-centric policies, we need someone who resonate with the problem. जो औरतों को समझे, उनके साथ जो होता है उसको जाने, फिर क्या, फिर अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाई जाए, वो खुद ही सही होंगे। द होल माइंड सेट एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन नीड्स टू बी चेंज, सेइंग दैट गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे लॉज लाए जाएं जिनका रैपिड इम्प्लीमेंटेशन हो, साथ में ऐसी सिचुएशन में जस्टिस भी जल्द मिले। आधे लोग रेप इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो इससे बच जाएंगे, क्योंकि लॉज यहाँ बन जाते हैं पर कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और कई केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। गवर्नमेंट की सबसे पहला काम होना चाहिए एक डिटेल स्टडी कंडक्ट कराए, एक्यूरेट नंबर्स को कलेक्ट करे और इंश्योर करना कि पुलिस बिना किसी विक्टिम को हैरेस किए हुए केसेस फाइल भी करे और अक्यूज्ड को अरेस्ट करे। जस्टिस JS वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी थे, दैट आस्क गवर्नमेंट टू इंश्योर फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। द सजेशन इंक्लूडेड changes in school and colleges syllabus to educate social values of equality and respect for women's autonomy. इसके साथ सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिटी एंड स्ट्रीट लाइटिंग, CCTV कैमराज, मैपिंग ऑफ अनसेफ एरियाज एंड प्रोविजन ऑफ इंक्रीज्ड पुलिस पेट्रोलिंग इन सच एरियाज, ये सब इंक्लूडेड थे। इंडिया हैज़ टेकन सम स्टेप्स बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। Enhance accessibility to justice need to be ensured. In short, बहुत काम करना जरूरी है। All is the need of hour. Awareness, sensitization of people, fast track courts, better policing. पर हम कहाँ तक पहुँचे? Women still feel unequal. Numbers के according तो हम नीचे ही जा रहे हैं। In our country, as it was years back, a collective action by both government and the society can definitely bring only what we can wish for: positive change, and that is. Thank you so much for watching this video. If you have any feedback, please let us know in the comment section below, and do not forget to share and subscribe. If you believe in our idea, please share the story. Thank you.